إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نور توحید سے مجلہ فرمایا، مزین فرمایا ہمارے دلوں کو، اور ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی نبوت کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا اور اس امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کو قرآن کی زبان میں دین اسلام کہا گیا ہے، اور اسی دین کی دعوت لے کر کے ہم سب مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ سارے نبی، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے یہی دین لے کر کے آئے۔ اسی دین کی دعوت کو انہوں نے بندگان خدا تک پہنچایا اور دنیا انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے ایک اللہ کی غلامی اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دین لائے، اسی دین کو لے کر کے آئے، اور یہ دین جن نفوس قدسیہ نے ہم تک منتقل کیا، جن لوگوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا یا اگلی نسلوں تک منتقل ہوا، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعریفیں، ڈیفینیشنز علماء نے دی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر، کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر صحابی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، کہتے ہیں من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسلمین فهو صحابی، کہ مسلمانوں میں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کے رسول کو دیکھنا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، اور ایمان لانے کی حالت میں ہی فوت ہو جانا، چاہے وہ اللہ کے رسول کے پاس 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ 1 دن ہی کیوں نہ رہے، چاہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان تمام نفوس قدسیہ کو
उन तमाम अतकिया को असफिया को सहाबा कहते हैं। और यही वो जमात है जिस जमात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक को रसूलुल्लाह के जरिए उनको दिया और उन्होंने दूसरी नस्ल को मुंतकिल किया। इसी तरीके से नस्ल दर नस्ल ये कुरान, ये हदीस हम तक पहुंचा। इन सहाबा का दिफा करना, इन सहाबा से मोहब्बत रखना, इनकी तर्ज जिंदगी को अपनाना और उस पर चलकर दिखाना, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। और सहाबा को ही वो जमात, जो जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, वो कोई आम जमात नहीं थी। उनके लिए वादे हैं कुरान में, अहादीस में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जिंदगियों को, अपने औलाद को, अपने अहल को, अपने खानदानों को, अपने माल और असबाब को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। और इसलिए नहीं किया कि वहां से कुछ दुनियावी मफाद हमें मिले, वहां से कोई गर्ज निकले, नहीं। लियब्तगी वजह अल्लाह, सिर्फ इसलिए दिया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमें उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जगह दे, आला इल्लीन में जगह दे। यही सहाबा हमारे दीन के मुंतकिल, हमारे दीन को मुंतकिल करने वाले, ट्रांसफर करने वाले, ट्रांसमीटर यही है, नरेटर यही है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, लौलल इस्नादु फिद्दीनी लकालु मन शा व मा शा, कि अगर दीन में इस्नाद नहीं होती, अगर दीन में सनद नहीं होती, तो फिर दीन के अंदर जो चाहता, जो शख्स चाहता बात कर देता और जो वो चाहता कह देता। नहीं, लेकिन हमारे दीन में इस्नाद चलती है, सनद चलती है। वाहिद दुनिया के एक दीन है जिसके पास लाखों लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनी, जिन्होंने कुरान सुना, उनकी एक एक हरकत उलमाए सलफ ने, उलमाए हक ने रिकॉर्ड की हुई है, मौजूद है। यहां तक मौजूद है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो क्या क्या चीजें उन लोगों के अंदर देखते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हदीस लेने गया, एक आदमी से हदीस लेनी थी, लेकिन वो आदमी, उस आदमी को उन्होंने देखा, उन्होंने अपने हाथ आगे किए हुए हैं या अपना दामन आगे किया हुआ है, दामन या हाथ खाली है, उसमें ना कोई चारा है ना कोई दाना है, वो और एक मवेशी को, एक गाय या किसी जानवर को वो बुला रहे हैं धोखे से। जब देखा कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, कहा कि ये आदमी इस काबिल नहीं है कि इससे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली जाए। यानी कितना एहतमाम किया गया है, कितनी केयर की गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस लेने की। और हदीस को मुंतकिल करने वाले सबसे पहले सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। सैयद सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े अहले हदीस के आलिम गुजरे हैं, पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, उनकी कब्र को पुरनूर करे और उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाए जन्नत में, और उनके तमाम इल्मी खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उन्होंने किताब लिखी खिलाफत व मुलूकियत की शरई हैसियत। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप किसी खबर को मशकूक बनाना चाहते हैं, कहा कि दुनिया में एक उसूल है, यानी अगर किसी न्यूज को आप मुश्तबह बनाना चाहते हैं, डाउटफुल बनाना चाहते हैं, उसमें शक पैदा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? दुनिया वाले क्या करते हैं, जो खबर लाने वाला होगा उसके बारे में गलत फहमियां फैलाएंगे, उस पर मुख्तलिफ इल्जाम लगाएंगे, ताकि जो उसने खबर दी उसका कोई एतमाद ना रहे। यही मिसाल कुरान करीम की है।
یہی مثال احادیث نبویہ کی ہے. اگر ان نفوس قدسیہ پر صحابہ کی زندگیوں کو داغدار کیا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے بارے میں تنقیص کی جائے، کیونکہ they are the transmitter of حدیث اینڈ قرآن، وہ ٹرانسمیٹر ہے قرآن اور حدیث کی. جب ان کی ہی زندگی کو مشکوک بنا دیا جائے تو قرآن اور حدیث کی کوئی حیثیت پھر بچتی نہیں بچتی. اسی لیے دفاع صحابہ، ڈیفنس آف صحابہ، یہ ہر مسلمان کا دن اور رات ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی شخص انگلی اٹھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے صحابی پر، مسلمان کھڑا ہو کر کے اسے دفاع کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کہ اس جماعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. قرآن کبھی کہتا ہے قرآن اولئک هم الفائزون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. ان کی کامیابی کی گارنٹی آپ کی اور میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کی اور میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. آیا مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا کچھ پتہ نہیں. لیکن صحابہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وسعید فی الجنہ وسعد فی الجنہ وطلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ وابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. ابو بکر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، عمر جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں. ان کے لیے گارنٹی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیدائی بنائیں، ہم اپنے آپ کو وفادار بنائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. انبیاء کے بعد، تمام نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تمام کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ کفار، اس زمانے کے کفار بھی یہ مانتے تھے کہ پہلا نمبر مسلمانوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب جنگ احد ہوئی اور جنگ احد میں یہ خبر پھیلی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دی گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس جنگ میں اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے. جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب افواہ پھیلی کہ شہید کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آواز لگائی، نعرہ دیا افیکم ابا بکر، کیا تم لوگوں میں ابو بکر زندہ ہیں؟ مطلب یہ نکلا کہ کفار بھی یہ مانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت میں کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنی محبت تھی صحابہ کو آپس میں. اس لیے ہمارے لیے کیا کہا گیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے ہمیں کیا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ مسلمانوں اگر تم ایمان اس طریقے سے لاؤ گے، اس طرح لاؤ گے جس طرح صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی اور رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے
कंडीशनल रखी है कि तुम्हारा ईमान भी अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान और अली का जैसा होना चाहिए, उनकी तरह होना चाहिए, फिर रब तुम्हें बुलंदी और सरफराजी अता करेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करन इश्तूद कौल, और ये कौल उनका साबित है सही सनद से, जिसको इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ने बयान किया अपनी मुस्नद के अंदर। कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूब। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को देखा, टटोला। अल्लाह ताला तो जानता है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह वो ख्यालात भी जानता है, वो सोच भी जानता है जो मेरे दिल में अभी नहीं आई है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम इंसानों के दिलों में सबसे बेहतरीन दिल जिसको अल्लाह ताला ने पाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। आगे फरमाया, फस्तफाहु लिनफ्सी फबततहु बिरिसाला, कि फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, उसे अपने लिए चुना। अल्लाह अकबर, कैसा इंतखाब है, कैसा सिलेक्शन है, जिसका बातिन भी ताहिर, जिसका जाहिर भी खूबसूरत, जिसके बारे में हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला फरमाते व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ कअन्नका खुलिक़ता मिन कुल्ली खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशा। हसन बिन साबित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन थे, इतने जमील थे, कोई औरत ऐसा जमील और हसीन जन नहीं सकती, न जना है। और ऐसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो कि रबा मुझे ऐसे बनाते जा, और अल्लाह ऐसे बनाते गया। अल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन मसूद क्या फरमाते, पूरी दुनिया के दिलों को अल्लाह ने देखा और उनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया अपने लिए, और फिर उसे रिसालते उज़्मा से, नेमत उज़्मा से सरफराज किया, उसे नबी बनाया। उसके बाद क्या फरमाया, सुम्मा नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, यानी रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने दुनिया के लोगों के दिलों को देखा। फवजद क़ुलूब अस्हाबी खैरन खैर क़ुलूबिल इबाद, फरमाया फिर अल्लाह ताला ने जब लोगों के दिलों को देखा तो उनमें से बेहतरीन दिल, मुसफ़ा दिल, मुजल्ला दिल, पाक दिल, आला किस्म के दिल किनको पाया, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फजअलहुम मुदरा नबिय्यिही लियुक़ातिलूना अला दीनिही फीमा लियुक़ातिलूना अला दीनिही। फिर अल्लाह ताला ने उन असहाब मोहम्मद को चुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीर, मुआविन और मददगार। और हम तारीख में देखते हैं कि सहाबा ने अपनी हर चीज इस्लाम के लिए लुटा दी, अपना हर लम्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निछावर कर दिया। इसीलिए हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए नमूना, हम जिनकी जिंदगियों पे चल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो जिंदगी असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन की है। और इतना ही नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फमा राअल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन वमा राअू सय्यन फहुवा इंदल्लाहि सय्य। सहाबा की कितनी अजमत है, किसी आम मुसलमान की नहीं है, किसी आज के गद्दी नशीन की नहीं है, किसी आज के जुब्बा कुब्बा पहन करके अपने गंदी जुबान से सहाबा की किरदार कुशी करने वाले की नहीं है। फरमाया जिस चीज को सहाबा अच्छा जाने वो अल्लाह के यहां भी अच्छा है, और जिस चीज को सहाबा बुरा जाने वो अल्लाह के यहां भी बुरा है। इसीलिए सहाबा के इजमा को
पूरी उम्मत के लिए सुन्नत करार दिया गया, उसी तरह जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये अजमत किसको मिल गई, ये रिफत किसको मिल गई? उन सहाबा को जिनके बारे में कहा गया फरसान रहबान फिल लैल व फरसान फिल नहार, कि रात में वो राइब हैं, रातों को वो उठ उठ करके अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के लिए रोते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और दिन को अपने घोड़ों को लेकर के, अपने ऊंटों को लेकर के मैदान जहाद में निकलते हैं इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा करने के लिए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग आज क्या करते हैं, सहाबा की तनकीस बयान करते हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, कहा कि जो कहेगा चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा आलिम कहे, जो किसी भी सहाबा को, किसी भी सहाबी की तनकीस करे, चाहे वो अपने आप का अलामतुद्दहर कहे, अल्लामा कहे, शेखुल इस्लाम कहे, बड़े बड़े अलकाबात अपने आप को दे, लेकिन वो जिंदीक है, फासिक है, फाजिर है, मुजरिम है, उसको अल्लाह के दरबार से रांदा है, भगाया हुआ है, मलऊन है। इमाम शाफई रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, ये किताब मेरे पास है, इसका लिखने वाला है इरशादुल हक असरी साहब जो अभी हयात हैं, उन्होंने मकाम सहाबा किताब लिखी, इसके अंदर उन्होंने मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफई रहमतुल्लाह का कौल बयान किया है। फरमाते हैं कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है, साहबा के बारे में हरदे सराई करने वाले ये बदबख्त लोग, ये बेहया लोग, इन्होंने क्या चेहरा दिखाना है कल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुंह दिखाएंगे ये कल कयामत के दिन, जिस वक्त सहाबा जिनके बारे में कुरान ने कहा सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, सहाबा की जमात वो जमात है जिनके चेहरे चमकते हैं उनके सजदों की वजह से, उनके अल्लाह के सामने झुकने की वजह से। ये काले स्याह चेहरों वाले, ये अपने बदकिरदार लोग क्या मुंह दिखाएंगे उस जमात को जिस जमात के चेहरे क़यामत के दिन चमकते होंगे, जिस पे गवाह है रब का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। इमाम शाफई क्या फरमाते हैं? इमाम शाफई फरमाते हैं, मा अरा अन्न अन्नास युब्तलू बिशत्म असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला लियुज़ीदहुम अल्लाहु बिज़ालिका सवाबन इंद इंतिकाई अमलिहिम। कहा कि जिन बदबख्तों को शैतान ने इस काम पे लगाया है कि वो सहाबा की तनकीस बयान करे, अल्लाह चाहता था कि मरने के बाद भी असहाब रसूल के दर्जे बुलंद होते रहें, वो बुलंदियों पे बुलंद होते रहें, आला इल्लीन में होते रहें। इसीलिए शैतान ने कुछ बदबख्तों को इस काम पे लगाया कि वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस बयान कर रहे हैं। सहाबा की जो तनकीस बयान करेगा वो सहाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बारे में कुरान ने कहा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सुलह हुदैबिया में जो सहाबा मौजूद थे, रिवायतों में आता है 1500-1400 सहाबा मौजूद थे। क्या फरमाया अल्लाह ने खुद कुरान में उनके लिए, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, ये मोमिनीन वही सहाबा की जमात है। लक़द यकीनन बित्तहक़ीक़ राज़ी हो गया अल्लाह ताला उन सहाबा से जिन सहाबा ने उस दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। उनकी वफादारी को, उनकी दयानतदारी को, उनकी वफाशारी को अल्लाह ने जाना और अल्लाह ने उनके दिलों को इत्मीनान बख्शा और कबूल किया अपने रास्ते में। इतना ही नहीं, इसी सूरह फतह की आयत हैं, इसमें जब बैत होने लगी क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह,
यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जब अल्लाह के रसूल बैत लेने लगे, अल्लाह के रसूल के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दे दिया। यह अकीदे का एक बाब खुलता है, लेकिन इस वक्त में उस तरफ नहीं जाऊंगा, थियोलॉजी की तरफ नहीं जाऊंगा। इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के हाथ को अपना हाथ कहा। और कौन बैत कर रहा है? सहाबा बैत कर रहे किस पे? अल्लाह के रसूल के हाथ पे। लेकिन हाथ को किसका हाथ कहा जा रहा है? अल्लाह का हाथ कहा जा रहा है। तुम्हारे गंदे हाथों को भी कोई कहे, तुम्हारी इस मजदूर जुबान को भी कोई कहे, तुम्हारे पास भी कोई सर्टिफिकेट हो कि तुमसे अल्लाह राजी हुआ, जिनको अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट देनी थी, जिनके मकाम को बुलंद करना था, उनके मकाम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादे अल्फाजों में बुलंद कर दिया। और इमाम सादी रहमहुल्लाह तफसीर सादी में फरमाते हैं, इसी सूरह फतह की एक आयत का टुकड़ा है जिसमें कहा गया है लियुगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कि सहाबा के फलने फूलने से, सहाबा की जमात की कामयाबियों से कुफ़्फ़ार जलते हैं। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो भी इंसान सहाबा की तनकीस बयान करे, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही क्यों न कहता हो, इमाम मालिक का दो टोक फतवा है। इमाम सादी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में लाया है, कहा कि वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, उसे मुसलमानों की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये ट्रेंड फैलाया जाता है, ये शकूक फैलाए जाते हैं कि नाउज़ बिल्लाह सहाबा को आपस में बनती नहीं थी। जिन सहाबा के बारे में कहा गया है रहमा बैनहुम, कि वो आपस में रहमा थे, शफीक थे, करीम थे, आपस में मुआसात वाले थे, इखात मुखव्वत वाले थे, उखुव्वत वाले थे। आज कहा जाता है कि वो सहाबा आपस में लड़ते थे, नाउज़ बिल्लाह वो गासिब थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत लाई है, जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छुरा लगाया गया, उनको वार किया गया मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो बिस्तर फराश पे थे, आखिरी लम्हात पे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कोस गो, अब्बास गो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाच, और अब्दुल्ला गो एमसी अब्बास नेचू, ये छु बयान करन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छु रिवायतन फरमावन कि अन्ना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल इन्नी लवाकिफुन फी कौमिन नदउल्लाह लिअमर इब्न खत्ताब, कि मैं एक कौम में था, कुछ लोगों में था जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से, क्योंकि अलील थे वो, छुरे के 7-8 वार उन पे लगाए गए थे। रिवायत में आता है कि एक दिन उमर बिन खत्ताब को दूध पिलाया गया, वो दूध पेट से बाहर निकल आया। इस हाल में उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ अरसा काटा, कुछ दिन काटे। उन्हीं अयाम की ये बात है, कहा कि लोग दुआ कर रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो उमर है, मैंने पिछले जुमा भी कहा था, दुश्मनों से, मुनाफिकों से, साजिश करने वालों से अल्लाह बचाए, कि वो उमर जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, जिससे पूरा अरब कांपता था, लेकिन जब साजिश करके गफलत से उस पर वार किया गया, वो उमर भी इस वक्त अलील है, वो उमर भी इस वक्त बिस्तर फराश पे है, और लोग उस उमर के लिए दुआएं कर रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं भी उस जमात में शामिल था, अचानक पीछे से कोई आया और मेरा हाथ कंधे पे रखा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो दुआ कर रहे हैं और उनका हाथ मेरे कंधे पे। दुआ क्या कर रहे हैं? फरमा रहे हैं रहिमकल्लाह, ऐ उमर अल्लाह की रहमत हो तुम पर, अल्लाह तुझे बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह तेरी मगफिरत फरमाए। इसके बाद क्या फरमाए? इन्नी कुन्तु अर्जू यजअलकल्लाहु मअ साहिबैका, फरमावन कि अल्लाह
मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उमर को अपने दो साथियों के साथ रखेगा, जगह देगा। वो दो साथी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद क्या फरमाया, लइन्नी कसीरन मिम्मा कुन्त वअस्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि अक्सर जो हम रसूलुल्लाह से सुना करते थे वो क्या कहते थे, क्या कहते थे, अल्लाह अकबर, यक़ूल कुन्तु अना व अबू बकर, हमेशा ये कहते थे मैं और मेरा, मैं और अबू बकर, मैंने और अबू बकर ने किया, मैं और अबू बकर गया। ये कौन कह रहा है? यह अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला, जिस अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आड़ लेकर के आज सारे सहाबा को काफिर और मुर्तद करार दिया जा रहा है। वो अली दुआ कर रहा है अपने साथी के लिए, इस्लाम के अजीम मुजाहिद के लिए, इस्लाम के अजीम खलीफे के लिए। अल्लाह से क्या कह रहा है, ए अल्लाह उमर पे रहम फरमा, और खुद अपनी जुबान से फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते थे, मैं और अबू बकर गया, मैंने और अबू बकर ने, मैंने और उमर और अबू बकर ने किया। ये गवाही दे रहा है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा की आपस में मोहब्बत थी, सहाबा आपस में एक थे, सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजीर थे, मुआविन थे, मददगार थे। आज के दौर में, इस पुरफितन दौर में, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, जबकि यूट्यूब का दौर है, चंद गुंडे, चंद बदबख्त लोग जो चंद किताबें पढ़ करके आते हैं, जैसे आजकल काफी अरसे से मिर्जा इंजीनियर का एक फितना है जिसने हमारे कई जवानों के दिलों को मसमूम कर दिया, जहर आलूदा कर दिया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के ताल्लुक से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पुरफितन दौर में हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए, और हमें मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी और हमारे जवानों को भी, ताकि इस्लाम की जो मीरास है, इस्लाम की जो विरासत कुरान और हदीस की शक्ल में, सहाबा की शक्ल में हमें मिली है, हम उसका दिफा करने वाले बन जाएं, हम उसको अपनाने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए।